we were talking about reproduction of fungi. So fungi reproduction, two types of reproduction was there, like asexual reproduction or sexual reproduction. So asexual reproduction, in which we already discussed about, like there were different types of spore formation, and now we are going to talk about sexual reproduction. So basically the sexual reproduction, which was different type, like planogametic copulation, gametangial contact, then gametangial copulation, spermatization or somatogamy. Okay, so now let's come to the what is planogametic copulation. So there are fusion of two naked gametes, because in sexual reproduction there will be formation of the gametes. So the name given is planogametic copulation. Firstly, there will be fusion of one or both are motile, like both the gamete or maybe only one gamete which will be motile, or it is completed in three manner. So first type is isoplanogamy, anisoplanogamy, or hetero heteroplano, or we can say that gametic copulation. Isoplano, that means gametic copulation. Iso, that means same. Okay, so it involves two motile and morphologically similar gametes. Two motile, that means the gametes which can move from one place to another place. That's why the name given is motile, because these gametes have flagella. So what is the work of flagella? Flagella, which helps for the movement of the gametes, so it is motile. And both the gametes are morphologically similar. Morphologically similar, that means their size or shape will be equal. Okay, and maybe both or one gamete which have flagella by which they can move. For example, Synthetrium opidium. So another type is anisoplanogamy. That means both the gametes are not similar, like morphologically not similar, their size or shape. Okay, they will be different. Like one gamete which will be large in the size, or another gamete which will be small in the size. So both are unequally. Okay. For example, Yes, ma'am. Blastocadials, and the genus is Allomyces. So in this species, basically the gametes which will be morphologically dissimilar or different. Okay. Then third type is heteroplanogamy. वर्ड्स पे ध्यान देना. Iso, that means morphologically similar. Aniso, that means morphologically different. Hetero, that means both the gamete which will be uh, also different, but their function will be also different. Okay, like aniso or iso, only morphologically similar or not. Okay, and hetero, that means both the gametes which will be different from each other in all manner. Okay, and basically the female will be non-motile in heteroplanogametic,
or the male will be motile. Okay. So in lower fungi such as Chytridids, heteroplanogametic population will be there, and we can also call oogamy. Okay. So there are three types of planogametic population: isoplano, anisoplano, or heteroplanogametic. Now, like in first diagram, planogametic copulation. In isogamy, both the gametes are similar in size or shape. Okay, and both have flagella or flagellated. In anisogamy, one gamete which is large in the size or another gamete is small in the size. Okay, and then oogamy, that means the like the ovule or the egg or the sperm which will be attached to each other. So these are the sperm and the another one is egg. Okay, so there are three types of planogametic copulation. So in isogamy or in anisogamy, isogamy both are similar, anisogamy both are different. Only we are talking about morphologically similar or not. Okay, so that will be iso or aniso. Then uh, second type of reproduction will be gametangial contact. Like firstly, we are talking about types of gametes, which type of gametes will there. After that, how the gametes will be contact. Okay. So there is two part in this diagram. Like one is oogonium, another is antheridium. Oogonium, that means we are talking about the female reproductive part of the fungi. Okay. So oogonium, that is female, and the antheridium, which is male fungi part. Okay. So both will becomes in the contact of each other, and by the surface they will be attached. After that, gametangial copulation will be there, like both the gametes which will be comes together. After that, and after attachment, there will be lysis of the membrane. यहाँ पे देखो, पहले दोनों अटैच हुए, यहाँ पे बीच में तुम लोगों को इनकी एक मेम्ब्रेन दिख रही है. तो अटैच होने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर होना शुरू होती है, और वी कैन से दैट द मेम्ब्रेन विल बी लाइसिस एंड बोथ गैमेट्स विल बी फ्यूज. ओके, due to the some enzyme or hormonal secretion, basically some enzyme will be worked there, so the membrane will be disappear and both the gametes will be fused. Like one is male gametangium and another is female gametangium, and those are attached to a host cell. Okay, because we are talking about the fungus, those are parasites on another plant. That's why firstly they will be attached with the host cell, and then how they will reproduce there and how they are increasing their number. So it will be attached to the host cell. After that, there will be spermatization, that means formation of the sperm, and after that the sperm will be releases or they will be attached to a particular hypha, and then somatogamy will be there. That means both the hypha, those are opposite of each other, so how they will be met or how the mating will be there, that is the somatogamy. Okay, so this is all about the sexual reproduction of fungi.
Now comes to the theory, like, and second is gametangial contact. Like in this method, two gametangia of opposite sex comes in contact, like female or male. This one, that is the gametangial contact, oogonium or antheridium. Oogonium, which belongs to the female part, and antheridium, male part. So it involves the fusion of two protoplasts in a common cell. Okay, thereby their separate identity is lost. Like now, the both will be same or only it will be single. Okay, before up to gametangial contact, the female part or the male part, those were different. Okay, but after gametangial copulation, it will be same. That's why here we are saying that their separate identity is lost and the fusion produces a zygospore, and now the spores will be motile. Okay, and whenever there will be formation of the spores or zygospore, that means now the new generation of the fungi is started. Okay, so in the Yes, ma'am. zygospore, the male and female nuclei pair with each other. Eventually, some of these pairs of nuclei fuse and the diploid nuclei undergo meiosis to restore haploidy. Like two types of cell division will be there, like animals. So here now the meiosis will be started. Like one is mitosis, in which the cell which increase their number. Like firstly 2 cell, then 4 cell, 4 to 8 cell, like that. And in meiosis there will be reductional division. Reductional division, that means they will be decrease the number of their like nuclei or their chromosome. Okay, and this kind, the particular daughter cell or the spores, which will be again haploid in nature. ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, दो पेरेंट सेल थी. जैसे ही पेरेंट सेल का फ्यूजन होता है, उसके बाद वो एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाती है, और सिंगल सेल में कन्वर्ट होने के बाद उससे जो सेल्स बनती है वो हमेशा कैसी होती है नेचर में, हैप्लोइड. ओके, लाइक मदर सेल से डॉटर सेल का बनना. तो जब जो मदर सेल होती है या जो पेरेंट सेल होती है वो होती है डिप्लॉयड इन नेचर, और जब डॉटर सेल बन जाती है या फिर जब रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, देन इट विल बी अगेन हैप्लॉयड इन नेचर. That's why we are saying that some of these pairs of nuclei which will be fused and the diploid nuclei undergo meiosis, or in meiosis the reductional division will be there and the number of the chromosome will be just half. That means to restore their haploidy. Haploid, that means single. Okay, like from 2n it will be convert into n, or it is common in class, so that is zygomycetes. Now like all the fungi, those are including in zygomycetes class, in which the reproduction will be same. ओके, समझ आया यहाँ तक? Yes, ma'am. बोलने से तो नहीं लग रहा. पूछ लो मैम. ये जो ये डायग्राम है ना, इसको ध्यान में रखना. अगर डायग्राम बना दोगे अच्छे से तो बस सिर्फ तुम्हें इसी का एक्सप्लेनेशन लिखना है. ठीक है, देखो यहाँ Yes, पे ma'am. ये कांटेक्ट था. जब तक कांटेक्ट हुआ, both are the different and both have different identity. Okay, like oogonium or antheridium. After that, gametangial copulation,
up to here both were the same, but in this diagram the membrane will be again lysis and both will be fused. That means now the cells which will be lost their identity. Okay, and like that it will be convert into the daughter cell. Now मैम एक मिनट पीछे वाले मैम एक बार डायग्राम खोलना मैम वापस। ऐसे पहले वाला है मैम प्लेनोगैमेटिक, इसमें मैम जैसे एंटर करता है क्या मैम एंथ्रीडियम उसके ओगोनियम के अंदर, मतलब हाँ, सॉरी, पहले अटैच होते हैं, उसके फिर बाद वो फिर एंटर उन कर जाता है। दोनों के जो देखो ये जो डायग्राम दिख रहा है, कॉन्टेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, जो एग की यस मैम। आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है, मतलब इस कंप्लीट पार्ट को यस हमने मैम। नेम दिया है उगोनियम, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उगोनियम में क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंथ्रीडियम में क्या होता है, एंथर बनते हैं। ठीक है, लाइक वी कैन से दैट स्पर्म। ओके, अब ये यहाँ पे क्या हो गए, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, दैट मीन्स अटैच हो गए। अटैच होने के बाद यहाँ पे एक एरो दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक जो किया हुआ है, रेड वाला जो यस मैंने मैम। हाईलाइट कर रखा है उसमें। अब यस मैम। देखो, जो दोनों के जो प्रोटोप्लास्ट हैं, प्रोटोप्लाज्म जो है इन दोनों सेल्स के, इस ड्यूरेशन क्या हो जाएंगे, दोनों फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये फ्यूज होंगे, उसके बाद जो इनका न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियाई है उसका फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या बन गया, अब एन से 2n कंडीशन में आ गया। ठीक है, तो ये जो यस मेम्ब्रेन मैम। है इसकी, एग की जो मेम्ब्रेन है, वो हमेशा क्या होती है, जब इनका कांटेक्ट होता है स्पर्म का और एग सेल का, कांटेक्ट होने के बाद ये जो मेम्ब्रेन होती है उसका लाइसिस होता है, क्योंकि जब तक अगर मेम्ब्रेन का लाइसिस नहीं होगा, दैट मीन्स जो सेल्स का मटेरियल है डिफरेंट डिफरेंट है, वो कभी भी फ्यूज नहीं हो सकता। तो पहले इसका लाइसिस होगा, फिर जो उनका प्रोटोप्लास्ट है, जो प्रोटोप्लाज्म है उसका फ्यूजन होगा, और आफ्टर फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट द न्यूक्लियाई विल बी फ्यूज। और जैसे ही न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, अभी तक ये किस कंडीशन में थी, एन कंडीशन में और हैप्लॉइड में। ठीक है, लेकिन फ्यूजन के बाद ये क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा, 2n कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, और 2n होने के बाद अल्टीमेटली जब इनसे डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि अब इस प्रोसीजर के बाद यहाँ पे डिवीजन होना शुरू होते हैं, दैट विल कॉल मियोसिस। और मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन। लाइक एक होता है माइटोसिस, उसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो हमेशा इंक्रीज होते हैं, क्योंकि उसमें डिवीजन होते हैं। लाइक 1 से 2 सेल का बनना, 2 से 4 सेल का बनना। उसके बाद फिर इसमें वापस मियोसिस स्टार्ट होगा। मियोसिस का मतलब है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल मतलब अब जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है या फिर जो न्यूक्लियर है वो कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ दैट मीन्स अगेन जो सेल है, डॉटर सेल है, वो कैसी हो गई है, हैप्लॉइड हो गई। अब जो हैप्लॉइड सेल बनी है, अब धीरे धीरे ये क्या करेगी, अपने होस्ट से न्यूट्रिएंट्स को लेती रहेगी, एब्जॉर्ब करती रहेगी, साइज में कैसी हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। ठीक है, फिर वो साइज में जैसे जैसे लार्ज होती जाएगी, उसमें माइटोसिस होगा और वो अपने नंबर को इंक्रीज करेगी। उसके बाद उसमें रिप्रोडक्शन होगा और फिर उनसे वापस हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोसीजर में देखो, गैमेट एंजल कॉपुलेशन में यहाँ पे उसका फ्यूजन हो गया। ठीक है, लाइक पहले कांटेक्ट में आएंगे, फिर उसका फ्यूजन हो जाएगा। यस मैम, समझ न्यूक्लियस का आया? फ्यूजन हो जाएगा। हाँ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? और मम्मी इसमें हाँ, इस पे स्पर्मेटाइजेशन में। बताती हूँ, स्पर्मेटाइजेशन में बताती हूँ ना। एक बार ये पढ़ लो, फिर उसके बाद वापस डायग्राम देख के फिर हम डिस्कस करेंगे। देखो, स्पर्मेटाइजेशन, द मेल gametes आर कॉल्ड स्पर्मेटिया which are produced in Puccinia और Spermogonia.
So the nucleated or non-motile spermatia are possessively transferred by insect to the receptive female hyphae, leading to plasmogamy. So the male nucleus passes into the female receptive hyphae and fuses with a female nucleus. For example, rust fungus Puccinia. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओवरऑल जो फंजाई है उसमें रिप्रोडक्शन की, लेकिन लाइक जो लोअर फंजाई और जो हायर फंजाई है उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो अलग अलग टाइप से होता है, ठीक है। लाइक किसी में किस टाइप से होता है, किसी में किस टाइप से होता है। अब जैसे यहाँ पे है स्पर्मटाइजेशन, इसमें क्या होगा, जो मेल गैमीट्स हैं वो क्या होगा, अनन्यूक्लिएटेड नॉन मोटाइल होगा, और वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाता है इंसेक्ट के थ्रू या फिर किसी मीडियम के थ्रू फीमेल हाइफी से। और जैसे ही जो स्पर्मेशिया है वो जाके फीमेल हाइफी से अटैच होगा, उसके बाद उसमें प्लाज्मोगेमी वाला प्रोसेस होगा। प्लाज्मोगेमी दैट मीन्स जो सेल्स का प्रोटोन होता है वो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो मेल न्यूक्लियस to the female receptive hyphae and fuse with the female nucleus, और दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये दो तरीके के क्या थे, हाइफी थे, ठीक है। ये एक क्या है, स्पर्मेशिया है, जहाँ से क्या होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा और स्पोर्स होंगे। इसके ऊपर देख रहे हो छोटे छोटे जो गोले हैं वो क्या है, तो स्पर्म होंगे वो इनका जो रिसेप्टिव हाइफी होता है, रिसेप्टिव मतलब जो रिसेप्टर होता है जो उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है, या फिर जिस जगह वो बाउंड होता है। इसमें देखो ये यहाँ पे अटैच हो गया एक सिंगल हाइफी पे, और अटैच होने के बाद इससे नेक्स्ट डायग्राम में देखो यहाँ पे जो बॉल थी, जो magnet थी, वो हमें नहीं दिख रही है, और इसका जो न्यूक्लियस है स्पर्म का वो इस हाइफा के अंदर जा चुका है। दिख रहा है, एक ही डायग्राम है, उसमें दो तरीके के न्यूक्लियस हैं। मैम डायग्राम वाली स्लाइड अब ना अभी तुम लोगों को डायग्राम वाली नहीं दिख रही है, अब दिखिए अभी है ना। इसमें में देखो एक क्या है, स्पर्मेशिया है जिसपे कि स्पर्म्स हैं, ठीक है। ये जो दिख रहे हैं तुम्हें अलग से हाईलाइट जो किए हुए हैं डॉट डॉट, वो तो इसमें क्या होगा, अपना अलग न्यूक्लियस होगा, और जो हाइफा है उसमें अपना एक अलग न्यूक्लियस है। तो दोनों क्या होंगे, पहले अटैच होंगे। हर कोई स्पर्म हर किसी हाइफा से अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीजें क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। जिसका जो रिसेप्टर होता है वो उसी से जाके बाउंड हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों अटैच हो गए। अटैच होने के बाद नेक्स्ट जो हाइफा है उसमें देखो इसकी जो मेम्ब्रेन थी हाइफा की वो यहाँ से लाइसिस हो चुकी है, और जो स्पर्म और हाइफा है दोनों कांटेक्ट में हैं, देख रहे हो। और इसका जो न्यूक्लियस है वो हाइफा में जा चुका है। यहाँ पे दो अलग अलग न्यूक्लियस दिख रहे हैं, एक तो होलो टाइप का है और एक सिर्फ एक ब्लैक डॉट है। दिख रही है तुम्हें ये चीज? यस मैम, होलो तो उसका है ना। हाँ, तो एक तो किसका हो गया, जो हाइफा था रिसेप्टिव हाइफा उसका है होलो वाला, और जो ब्लैक डॉट हाँ, है वो किसका है, वो स्पर्मेशिया स्पर्म का है। है, या फिर वो मेल का जो पार्ट है वो है। तो अब दोनों क्या हो गए, एक सिंगल हाइफी में आ गए। दैट मीन्स अब इनका क्या हो जाएगा, फ्यूजन होगा, और फिर वो जाके आगे नई सेल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। यस मैम। ये होता है स्पर्मटाइजेशन, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड हाउ दे विल बी फ्यूज, ओके। फिर लास्ट में आता है सोमेटोगैमी। सोमेटो का मतलब हो गया
कि जो अपोजिट जो हाइफा होते हैं, दोनों हाइफा, उनके बीच में मैटिंग का होना या फिर उन दोनों हाइफा का फ्यूज होना, दैट विल बी कॉल्ड सोमेटोगैमी। मैम मैम वैसे फंजाई में सबसे मतलब मोस्टली सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिप्रोडक्शन मेथड कौन सा है मैम? सबसे ज्यादा यूज होता हो ज्यादातर जो, मतलब जो सबसे कोई ज्यादा एक बेटा पूछे कि वैसे जो भाई एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो हर कंडीशन में होता है। क्योंकि और ये पांचों तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, होते दोनों टाइप के हैं, सेक्सुअली भी और हाँ वो मैं एसेक्सुअली भी। समझ, यस मैम। बेसिकली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो ज्यादातर हायर फंजाई में होते हैं, क्योंकि उनका जो थैलस होता है वो बेसिकली डिफरेंशिएट होता है, और वो मल्टी न्यूक्लियर सेल्स होती हैं, है ना, और मतलब मल्टीपल जो सेल्स ज्यादा होती हैं, डेवलप्ड फंजाइज होती है उनमें होता है। उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यस मैम। एसेक्सुअल जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, क्योंकि उनमें डायरेक्टली स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। मतलब मैम राउंड ऑफ में मतलब फंजाई में ज्यादातर ज्यादातर लोअर एसेक्सुअल फंजाई में ये सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हाँ, और एसेक्सुअल हायर में होता है, ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल होता है। यस मैम। ठीक है। देखो, सोमेटोगेमी सेक्स ऑर्गन आर टोटली एब्सेंट, है ना। तो इस वजह से क्या होता है, उसमें जो हाइफा होता है, अलग अलग टाइप के जो हाइफी होते हैं, उन दोनों का क्या होता है, मैटिंग हो जाती है और डायरेक्टली उसमें रिप्रोडक्शन होता है, बिकॉज वहां पे कोई स्पेशल सेक्स ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होते लाइक उगोनियम और एंथ्रीडियम। ठीक है। सो इन दीज फंजाई मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई आर ब्रॉट टुगेदर बाय फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव हाइफी। हमने यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हाइफी यूज नहीं किया है, वेजिटेटिव हाइफी originating from mycelia of opposite mating type, और इन हाई बेसिडियोमाइसिटीज लाइक मशरूम, उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है सोमेटोगेमी। ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दो हाइफी दिख रहे हैं, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से अटैच होंगे, अलग अलग टाइप के हैं, क्योंकि इनका न्यूक्लियस का साइज देखो, एक में होलो बना हुआ है, एक में हमने इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से अटैच होंगे, एक बड की तरह स्ट्रक्चर बनेगी, और नेक्स्ट डायग्राम में देखो, दोनों में एक ही ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। दैट मीन्स जो एक था उसका जो न्यूक्लियाई था वो दूसरे में ट्रांसफर हो गया। अब आगे जाके यही क्या बनाएंगे, नई सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली जो सोमेटोगेमी होता है वो ऐसी फंजाई में होता है जिनमें की जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो टोटली एब्सेंट होते हैं, इसलिए वहां पे देयर विल बी द फ्यूजन ऑफ द अपोजिट। ओके। स्पर्मटाइजेशन में क्या होगा, जो स्पर्मेशिया होता है उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जो स्पर्म होते हैं वो जाके जो उनका रिसेप्टिव हाइफी होता है लाइक फीमेल हाइफी, उससे जाके वो अटैच होता है। अटैच होने के बाद उनकी जो वॉल होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसका लाइसिस होता है, और जो न्यूक्लियाई है वो उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है। और जिसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है उसमें क्या होगा, लाइक पहले जो गैमीट्स होंगे वो तीन टाइप के होंगे, जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे दैट इज आइसोगेमी, जो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे एनाइसोगेमी। मॉर्फोलॉजिकली दैट मीन्स only we are talking about on the basis of the size or shape of the gametes। मॉर्फोलॉजी में हमें वो यही चीजें पता चलती है कि उसका कलर कैसा है, उसकी हाइट कितनी है, या फिर उसका शेप कैसा है, या फिर वो कितना लार्ज है या कितना स्मॉल है। ठीक है। तो वो होता है आइसो और एनाइसोगेमी। उगेमी दैट मीन्स स्पर्म जाके जब एग के उससे जाके अटैच होता है,
The next procedure is gamete-angial contact. Gamete-angial contact, that means how the gametes will be contact to each other. तो उगोनियम टोटली जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसमें एग्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज उगोनियम. सो साइज ऑफ द उगोनियम और साइज ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज ऑलवेज लार्ज देन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ओके, तो जो उगोनियम है वो जाके एंथ्रीडियम से अटैच होता है. अटैच होने के बाद इसकी जो वॉल होती है उसका लाइसिस होता है. लाइसिस होने के बाद जो सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, पहले वो फ्यूज होगा और फिर उसमें न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे दोनों गैमेट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आए. कांटेक्ट में आने के बाद उनका क्या हो जाएगा, कॉपुलेशन हो जाएगा. कांटेक्ट का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, अटैचमेंट. ओके, लाइक उनकी जो वॉल है या जो मेम्ब्रेन है सिर्फ उसका अटैचमेंट हुआ है. कॉपुलेशन, दैट मीन्स टोटली द मटेरियल ऑफ द सेल विल बी ट्रांसफर. और we can say that up to gamete-angial contact the cell which also lost their different identity. Okay, समझ में आ गया? So there are 5 types of sexual reproduction of fungi. Now next is classification of fungi. पॉइंट्स है वो देख लो क्या क्या होते हैं. So there are standard endings for the various taxa like phylum ends in mycota. जब भी हम फंजाई के रिप्रोडक्शन की बात करेंगे उसमें जो फाइलम होगा उसके एंड में लिखा हुआ होगा माइकोटा, है ना. क्लास माइसिटीज, that means these all the words are common for each class or for each phylum. ठीक है, जैसे अभी हम एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम के आगे हमेशा लिखा हुआ होता है, एज लिखा हुआ होता है, एएससी है, लाइक अमाइलेज, प्रोटीएज. तो इस तरीके से जब भी हम फाइलम को डिनोट करेंगे दैट मींस माइकोटा इन केस ऑफ फंजाई ओनली. ओके, एंड क्लास को जब हम डिनोट करेंगे तो हमेशा होगा उसके आगे माइसिटीज, सब क्लास माइसिटिडी, ऑर्डर एल्स, फैमिली एसी, एंड जीनस एंड स्पीसीज हैव नो फिक्स्ड एंडिंग्स. लाइक ये हमेशा चेंज हो सकती है, बट तुम लोग ये चारों चीजें याद रखना. अगर ये तुम लोग याद रखोगे तो क्लासिफिकेशन पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा, वरना बहुत ज्यादा टफ पड़ेगा. ठीक है, सो जीनस इज ऑलवेज ma'am. रिटन with the first letter in capital like proper noun. इतना पता है तुम लोगों को कि फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए. Species in small letters as adjective qualifying the noun. तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फंजाई का क्लासिफिकेशन करते हैं. एंड दीज आर द की पॉइंट्स. तुम लोग इन की पॉइंट से याद रख सकते हो कि कौन सा फाइलम है, कौन सी क्लास है, कौन सी सब क्लास है, कौन सा ऑर्डर है और कौन सी फैमिली है. ओके, नाउ classification of fungal plant pathogen, basically two types like traditional and modern. So firstly we are going to talk about traditional classification. So traditionally fungi were classified under Thallophyta. Thallophyta जो कि क्या है, डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम. लाइक हमने एक होता है एनिमल किंगडम, एक होता है प्लांट किंगडम. ठीक है, प्लांट किंगडम के अंदर आता है थैलोफाइटा, लाइक थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना. इस तरीके से होता है. इतना तुम लोगों को नहीं पढ़ना है,
थैलोफाइटा में हम लोग इसको क्यों कंसीडर कर रहे हैं, लाइक एल्गी हो गई, फंजाई हो गई, तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, ना कि सारी फंजाई की, बल्कि कुछ कुछ जो फंजाई होती है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, फुली डिफरेंशिएटेड नहीं होती. Differentiated, that means they don't have the particular size of their vegetative part or reproductive part, and they doesn't fully differentiated into different organs or part, and they have a bag like structure or a thallus like structure. That's why they consider in thallophyta. फाइटा जो वर्ड यूज करते हैं ऑलवेज फॉर द प्लांट. कभी एनिमल के केस में पड़ा है फाइटा? नहीं. नो ये मैम. होता है हमेशा प्लांट्स के लिए. हमने फाइटा वर्ड यूज किया है. थैलो मतलब लाइक हम बोलते हैं थैला, थैला और बैग लाइक स्ट्रक्चर. दैट्स व्हाई वी कैन call them thallophyta, because they don't have their particular morphology and their structure is a bag like structure. That's why it is also considered in thallophyta. Thallophyta is a division of plant kingdom under 4 classes like Phycomycetes. Phyco word always used for the fungus. So also called like lower fungi, including Oomycetes, Chytrid, Chytridiomycetes, and Zygomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, and Deuteriomycetes. So in which including fungi imperfect. तो ये सब क्या हो गई, एक तरीके से लोअर फंजाई हो गई, लोअर फंजाई हो गई. तो इनमें क्या होता है, जो इनकी बॉडी होती है वो फुली डिफरेंशिएटेड नहीं होती, एंड दे हैव अ बैग लाइक स्ट्रक्चर. दैट्स व्हाई द नेम इज और इंक्लूडिंग इन थैलोफाइटा. मैम हायर में कौन कौन से आते हैं? अब इनके अलावा जितने बचे हैं वो सब हायर में आते हैं. अभी हम उसकी बात करते हैं. अलग अलग फंजाई पढ़ेंगे हम कि ये डिवीजन जो है वो हायर फंजाई के हैं और ये डिवीजन लोअर फंजाई के हैं. ठीक है. पर यहाँ पे हमने जो थैलोफाइटा जो डिवीजन लिया है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है थैलस लाइक स्ट्रक्चर. सो हियर मैम एंसवर्थ. हाँ बेटा. इनको शेप्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं क्या? शेप्स के अकॉर्डिंग तो नहीं करते हैं बेटा. इनको बेसिकली इसमें किस टाइप्स के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, शेप के अकॉर्डिंग भी करते हैं कि ये कितने ज़्यादा फुली डेवलप्ड हैं. लेकिन अगर हम सिर्फ इनकी अगर आउटर स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम क्लासिफाइड करते हैं तो हम लोग सिर्फ उसको लाइक एक ही डिवीजन में हमने उसको रख दिया, वो कर दिया उसको थैलोफाइटा में. तो वो जो डिवीजन किया है हमने थैलोफाइटा वो होता है उनकी साइज और शेप के अकॉर्डिंग, कि उसका जो बाहर से हमें जो शेप दिखता है वो थेरस लाइक दिखता है या फिर वो डिफरेंशिएटेड है ना. ओके मैम. लाइक अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग स्टडी की और उसके बेसिस पे उन्होंने अलग अलग उसको क्लासिफाइड कर दिया. ठीक है. सो हियर एंसवर्थ क्लासिफिकेशन in 1966 to 1973 included kingdom fungi with Myxomycota and Eumycota division. एक जैसे जैसे साइंटिस्ट आते गए वैसे वैसे अपने अकॉर्डिंग वो फंगस का क्लासिफिकेशन करते रहे कि कौन सी फंगस को किस बेसिस पे किस किंगडम में रखा है या फिर किस ऑर्डर में रखा है या फिर किस जेनरा में रखा है. So the Eumycota division
was divided into 5 subdivisions: Masticomycotina, Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, and Deuteriomycotina, which were further subdivided into classes, order, and so on. So, classification system based on the information on phylogenetic relationship of fungi, which obtained by a small subunit, that is 18S subunit is 18S, and ribosomal RNA gene comparison are now used. तो यहाँ तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि वो कौन से डिवीजन में आते हैं और उनकी कौन कौन सी क्लासेस क्लासिफाइड की गई है. ठीक है. After that, the traditional classification based on the spore case, like which type of spore formation will be there. So according to them, 4 types of divisions are there, like Ascomycota, Basidiomycota, Zygomycota और Deuteriomycota. ठीक है. इससे पहले जो क्लासिफिकेशन था वो था सिर्फ उनकी जो आउटर स्ट्रक्चर है या जो उनकी मॉर्फोलॉजी है वो कैसी है. ठीक है. फिर उसके बाद जो क्लासिफिकेशन किया वो किया स्पोर के बेसिस पे. क्लासिफिकेशन में तुम लोग सिर्फ ये मेन पॉइंट्स याद कर लेना. पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा और ये बहुत ज्यादा लेंथी भी है. मैम आप But- PDF सेंड कर देना मुझे. शायद ये वाला तो मैंने कर दिया था बेटा, मेल किया था. बाकी मैं और कर दूंगी एक बार ये कंप्लीट हो जाने. तो मैंने यश को मेल तो किया था, मिल गया था पता नहीं मैम उसमें यश. वो नहीं है मैम अभी तो. हाँ तो मैंने उसको भेज दिया था, उसने बोला था कि वो सबको सेंड कर देगा, वरना मैं और सेंड कर दूंगी. ठीक है. तो इनके जो मेन पॉइंट्स है ना क्लासिफिकेशन के, वो हमें हमेशा याद रखना है कि स्कोर के बेसिस पे हमने किस किस डिवीजन में क्लासिफाइड किया है, या फिर इसकी जो साइज और शेप है उसके बेसिस पे हमने कैसे कैसे उसको क्लासिफाइड किया है या फिर कितने डिवीजन में क्लासिफाइड किया है. ओके. So I think it's enough for today. Otherwise, you all will be confused. यस मैम. In next class, we will again discuss about the classification, like modern classification और traditional classification. इसमें हम ये देखेंगे कि जो पहले वाला जो क्लासिफिकेशन था वो किस बेसिस पे किया गया और फिर हमें मॉडर्न क्लासिफिकेशन की नीड क्यों हुई है ना, या फिर कौन सी नई चीजें सामने आई जिससे कि हमने इसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन का नाम दिया. ओके. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो मैम. ओके बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका और अटेंडेंस सेंड कर देना. मैंने नहीं लिया है, तुम लोग वो करके मुझे सेंड कर दो. हाँ जी मैम मैंने ले लिया है, मैं कर दूँगी. अच्छे से समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पैथोलॉजी में? नो मैम. सब कुछ क्लियर हो रहा है सबको? हाँ जी.